Hello friends, welcome to Guru Gyan YouTube channel. Today we will discuss about integration scheme under assessment of agricultural income. It is a very important topic. Assessment of agricultural income integration scheme. With effect from assessment year 1974-75, the agricultural income is integrated with non-agricultural income in certain cases of assessee. The integration is done only in those cases where assessee has both agricultural and non-agricultural incomes. In this video, we have to study the computation of net agricultural income and rules regarding integration of agricultural income with non-agricultural income. It is about a person who is a businessman. Like the person has both type of incomes, that is agricultural income and non-agricultural income. As you know that agricultural income we generate from the cultivation of land, means the land should be situated in India only, and all the crops, fruits, vegetables which we are selling, if we are earning any income after selling of these items, we are generating profit and it is fully exempted. But there's so many person in India who use crops as a raw material for the finished product. Means the same person can use raw material, crops as a raw material, and by doing some kind of process, that raw material the person convert into finished product. Like if we talk about sugar mill, if A has a business of providing sugar to the nation, then the person use sugarcane as a raw material, and that sugarcane has been converted by the person into sugar. So Mr. A has both type of incomes, that is agricultural income also and non-agricultural income also. So what is the rule regarding, you know, uh, the income if the person has both type of incomes? So in this video we will discuss the rules and regulations and steps also, how the tax liability of a person will be calculated. Now, first of all, integration scheme is available to the person who has both type of incomes, that is agriculture income and non-agriculture income. But what to integrate? A, non-agricultural income, it is computed total income of the assessee as per the provisions of Income Tax Act 1961, and net agricultural income. It is the agricultural income computed in accordance with the rules laid down under section 21A of the Income Tax Act 1961 and rules 7 and 8 of the Income Tax Rules 1962. Now, when to integrate? It is very important point. When the agricultural income and non-agriculture income will be integrated. So integration is done only in case of individuals, Hindu undivided families, association of persons, body of individuals, and artificial judicial persons. So इंटीग्रेशन जो होगी वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए या एच के लिए या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए होगी. इसके अलावा जो अदर पर्सन हैं उनके लिए इंटीग्रेशन नहीं होगी. मतलब इंटीग्रेशन स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अदर पर्सन जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं. B point is integration is done only if non-agricultural income of all the persons mentioned above exceeds exempted limits, that is 2,50,000 if the person is below 60 year of age, either male or female. If the person is between 60 and 80 years of age, then the exempted limit is 3 lakh. And if the person is super senior citizen, then means 80 years or 80 years above, then the exempted limit will be 5 lakh rupees. So
The condition is that in the relevant previous year, the non-agricultural income should be exceed of these limits. C point is integration is done only if net agricultural income of all these persons exceeds rupees 5,000 in the relevant previous year. इंटीग्रेशन इज डन ओनली, देखो ये कंडीशन है, अगर इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब असेसी की रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो एग्रीकल्चरल इनकम है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से एक्सीड कर गई हो. नाउ व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, अभी हमने पढ़ा कि व्हेन टू इंटीग्रेट कि कौन कौन सी पर्सनस जो हैं वो इस स्कीम के दायरे में आएंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, मीन्स इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन these kind of situation. अब ए है, इसमें इंटीग्रेशन इज नॉट डन इन केस ऑफ फर्म्स, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़. तो इन पर्सनस के लिए इंटीग्रेशन स्कीम जो है अवेलेबल नहीं है. बी पॉइंट इज नो इंटीग्रेशन इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ऑल पर्सनस मैंशनड अर्लियर डज नॉट एक्सीड 2,50,000, 3 lakh and 5 lakh एज द केस में भी इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. इंटीग्रेशन उनके लिए भी नहीं है अगर किसी भी असेसी की, जो पर्सनस हमने पहले डिस्कस किए हैं, इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है या BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अगर उनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ऊपर नहीं जाती तो उनके लिए इंटीग्रेशन स्कीम अवेलेबल नहीं है. एंड सी पॉइंट इज़ no integration if the net agricultural income does not exceed 5,000 in the relevant previous year. अगर उन persons की जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है 5,000 से एक्सीड नहीं करती तो इंटीग्रेशन स्कीम उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है. नाउ व्हाट आर द मेन स्टेप्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी असेसी के पास दोनों तरह की इनकम होगी तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितना टैक्स पे करना है. अब इसमें स्टेप्स हैं, मतलब फॉर यू ऑल मैंने इसको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में यहाँ पे लिख दिया है ताकि तुम्हें इजीली समझ आ पाए. तो इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितनी टैक्स लाइबिलिटी किसी पर्सन की बनती है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. Now first step is net agricultural income is added with the non-agricultural income if conditions given above are fulfilled. जो conditions है हमने पढ़ी हैं कि अगर उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो होगी वो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ऊपर होगी तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है. और अगली कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर उसका 5,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट है, मीन्स इनकम उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है. और इंटीग्रेशन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI के लिए हैं. तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा. नाउ सेकंड स्टेप इज़ टैक्स इज़ कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल एट करंट रेट ऑफ टैक्स. जो हमने ऊपर अमाउंट हमारा आएगा उसको उसके ऊपर हमने अब टैक्स को कैलकुलेट करना है जो कि हमारे करंट रेट्स ऑफ टैक्स हैं जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल हैं. मैं इसी वीडियो में आपको जो रेट ऑफ टैक्स हैं, मतलब 2021 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, वो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा कि एट प्रेजेंट हमारे कितने टैक्स रेट जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर हमें कितना टैक्स लगेगा. नाउ थर्ड स्टेप इज़ नेट एग्रीकल्चरल इनकम इज़ एडेड विद द एग्जेम्प्टेड लिमिट, दैट इज़ 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख एफ द केस में भी. मैंने जैसे आपको बोला है कि जो रेट ऑफ टैक्स है मैं आपको अभी शो करूँगा तो उसके थ्रू मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि 2.5 लाख लिमिट किसके लिए है या 3 लाख लिमिट किसके लिए है और 5 लाख रुपीज़ जो हैं वो किसके लिए एग्जम्प्टेड हैं. देन फोर्थ स्टेप इज़ टैक्स इज़ कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल एट करंट रेट ऑफ टैक्सेस. जो ऊपर थर्ड पॉइंट पे जो हमारी फिगर आएगी उसके ऊपर फिर हमने टैक्स को कैलकुलेट करना है एट करंट रेट्स ऑफ टैक्स. नाउ फिफ्थ स्टेप इज़ टैक्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट 4 इफ़ डिडक्टेड आउट ऑफ द टैक्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट 2 अबव. जो भी फिगर हमारा फोर्थ पॉइंट में आएगा वो हमारा डिडक्ट होगा फ्रॉम द फिगर विच वी हैव कैलकुलेटेड एट स्टेप नंबर 2.
Now, sixth point is add surcharge at the rate of 10% of tax if total income exceeds 50 lakh but up to 1 crore. अब सरचार्ज भी ऐड होगा. सरचार्ज कितना लगेगा? वो 10% होगा अगर किसी की भी इनकम एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपीज़ बट अप टू 1 करोड़, और अगर किसी की भी इनकम 1 करोड़ अबव बट अप टू 2 करोड़ है तो उसके लिए 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. और अगर किसी की इनकम 2 से 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ अगर अबव है तो उसके लिए 37% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़, सेवन्थ स्टेप इज़ ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑफ द टैक्स एंड सरचार्ज इफ़ एनी. तो 4% हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना है. वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको जोड़ना है. नाउ नेक्स्ट इज़ टोटल इज़ टैक्स पेबल. जो भी हमारा फिगर आएगा इस एजुकेशन सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस को जोड़ करके वो हमारा टैक्स पेबल होगा टू द गवर्नमेंट, टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अब इसके बाद जो 9 पॉइंट है, जो भी हमारा टैक्स पेबल आएगा उसको हमने राउंड ऑफ कर देना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. अगर हमारी फिगर आती है 1024 तो हम उसको ये मानेंगे 1020, मतलब वी हैव टू राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10. अगर हमारी फिगर आती है 1026 तो हम उसको मानेंगे 1030. मीन्स वी हैव टू राउंड ऑफ. इट इज़ आल्सो अ प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कि जो भी हमारा टैक्स अगर आता है तो उसको हमें मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना है. नोट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आगे स्टार लगाया हुआ है. A rebate under section 87 is allowed to a resident individual only if his or her total non-agricultural income does not exceed 5 lakh in a previous year. अगर हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5 लाख से ऊपर नहीं है इन द प्रीवियस ईयर, इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो वी विल गेट अ रिबेट. अब द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मच रिबेट इज अवेलेबल फॉर अस. अब उसका आंसर है कि रिबेट शैल बी इक्वल टू टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो भी हमारा टैक्स बनेगा, या फिर ₹12,500 विच एवर इज़ लेस, कि टोटल टैक्स जो हमारा बनेगा, या फिर 12,500 विच एवर इज़ अर्लियर. तो वो रिबेट हमें अंडर सेक्शन 87A में मिल जाएगी. देन अब देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि रेट ऑफ टैक्सेस जो हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. रेट ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. देखिए, कोई भी इंडिविजुअल हो, फॉर इंडिविजुअल्स बोथ मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन पॉइंट 2 and 3 बिलो, चाहे वो HUF है, चाहे AOP है, चाहे BOI है, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है. देखिए, अगर आपकी इनकम इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, पिछले साल आपकी इनकम 2,50,000 तक अगर है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. मीन्स आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील रहेगी. अगर आपकी इनकम 2,50,000 को क्रॉस कर जाती है अप टू 5 लाख, देन यू हैव टू पे 5% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 2,50,000. तो आपको 5% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है. अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है, 5 लाख टू 10 लाख, तो आपको 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख टैक्स पे करना है. सपोज आपकी इनकम 6 लाख होगी तो 5 लाख को एक्सीड करेगी, तो 5 लाख मतलब 0 to 2.5, 2,50,000 तक 0, देन 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक, मतलब 2,50,000 के ऊपर यू हैव टू पे 5% टैक्स, दैट इज़ 12,500 प्लस 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख. तो मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो 1 लाख के ऊपर आप 20% निकाल लोगे तो 20,000 मीन्स 12,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 32,500. वो आपको टैक्स पे करना है. अगर आपकी इनकम जो है 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 1,12,500 प्लस 30% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख, वो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है. अगर आप, अब सेकेंड पॉइंट देखो, फॉर द रेजिडेंट्स सीनियर सिटीजन एसएससी, अगर आप सीनियर सिटीजन हो मींस आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है,
बट लेस देन 80 ईयर्स ऑफ एज, तो आप सीनियर सिटीज़न में आ जाते हो। तो आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़ जाती है, जो कि 3 लाख है, और 3 लाख से 5 लाख तक आपको 5% ऑफ इनकम एक्सीडिंग ₹3 लाख। अगर आपकी इनकम 5 to 10 है, देन यू हैव टू पे 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख। एंड इफ़ योर टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 लाख, देन यू हैव टू पे 30% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख। जो पिछला अमाउंट है वो जुड़ता रहेगा, पिछला जो टैक्स आप करोगे 0 to 3, 3 to 5, जो उसका टैक्स रेट है वो तो अप्लाई होगा ही होगा। बाकी अगर 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 30% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख वो भी पे करना है। तो आपकी टोटल लाइबिलिटी बन जाएगी 1,10,000 प्लस 30% ऑफ 10 लाख, इनकम एक्सीडिंग 10 लाख। नाउ थर्ड पॉइंट इज फॉर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन एसएससी। मैंने आपको पहले ही बोला है सुपर सीनियर सिटीजन कौन होगा, जिसकी एज 80 ईयर्स होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। उसके उनके लिए जो टैक्स एग्जम्पशन है वो है 5 लाख, मीन्स 5 लाख तक उनको कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। अगर उनकी इनकम 5 to 10 है, 5 to 10 लाख के बीच में है, देन उनको 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख पे करना है। अगर उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो उनको 1 लाख प्लस 30% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख गवर्नमेंट को पे करना है। नाउ इसके बाद सरचार्ज भी ऐड होता है फॉर इंडिविजुअल्स। अगर किसी की टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख तो उनके लिए सरचार्ज नहीं है। बट इन केस ऑफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹50 लाख but does not exceed ₹1 crore, then 10% of the tax. If total income exceeds ₹1 crore but does not exceed ₹2 crore, then 15% of the tax. If total income exceeds ₹2 crore but does not exceed 5 crore, then 25% of the tax. And if total income exceeds ₹5 crore, then 37% of the tax. So ये सरचार्ज जो है वो 50 लाख से ऊपर वालों के लिए है। मीन्स जो मिडिल क्लास फैमिली है या हम लोग हैं, हमें सरचार्ज नहीं पे करना है, बिकॉज हमारी इनकम जो है मैक्सिमम 10, 15, 20 तक चली जाती है, पर उसके ज़्यादा मतलब ये जो सरचार्ज है यू कैन से दैट इट इज़ फॉर द रिचेस्ट पर्सन, जो बहुत ही रिच हैं, जिनकी इनकम को 50 लाख से ऊपर है, उनके लिए ये सरचार्ज गवर्नमेंट ने लगाया है। अब इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इट इज़ टू बी लेविड एट 4% ऑफ द टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एज कैलकुलेटेड एज पर प्रिस्क्राइब रेट फॉर ऑल द पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। पर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सभी को पे करना है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। मीन्स 4% जो हमारी लाइबिलिटी टैक्स वो बनेगा, उसके ऊपर 4% हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। देन स्पेशल रेट्स हैं फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स विच आर सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दैट इज 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20%, कैजुअल इनकम्स लाइक लॉटरी, रेसेस, पजल्स एक्सेट्रा में अगर आपकी कोई इनकम होती है देन यू हैव टू पे 30% टैक्स टू द गवर्नमेंट। फॉर LTCG on shares and units as specified under section 112A and exceeding ₹1 lakh, then you have to pay 10%. अब रिबेट मैंने पहले भी बात की है, रिबेट कितनी मिलती है। रिबेट इन केस ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अ रेजिडेंट इन इंडिया डज नॉट एक्सीड ₹5 lakh, a rebate shall be allowed out of the tax as under ₹12500 and or tax calculated on total income as prescribed rates whichever is earlier, कि टैक्स जो हमारा बनता है या फिर 12,500 उनमें से दो जो भी कम होगा वो हमारे को रिबेट मिल जाएगी। नाउ वी विल डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन स्कीम। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अरुण फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ हिज नेट एग्रीकल्चरल इनकम विल बी ₹50,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है 4,95,000 है। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो पहले मैं कंडीशंस जो थी उसको देखूँगा क्या वो कंडीशंस पूरी करता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर मिस्टर अरुण के साथ उसकी कोई एज मेंशन नहीं है देन इट इज़ इम्प्लाइड कि जो उसकी एज है बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है। मीन्स ये बंदा नॉर्मल सिटीज़न ऑफ इंडिया है जिसकी कि हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो रूल कौन से अप्लाई होंगे, 2.5 लाख वाला, मतलब अप टू 2,50,000 के एग्जाम्पशन।
तो हम देखते हैं कि ये मिस्टर अरुण जो है वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है। तो हम देखेंगे कि क्या उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से एक्सीड करती है। यहाँ पे 50,000 है तो वो भी कंडीशन हमारी पूरी होती है। और अब हम ये देखेंगे क्या उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसकी जो एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है उसको एक्सीड करती है। तो यहाँ पे है 4,95,000, तो वो भी कंडीशन हमारी फुलफ़िल होती है। मींस मिस्टर अरुण के लिए इंटीग्रेशन स्कीम जो है वो अवेलेबल है। नाउ जो मैंने स्टेप्स आपको पहले बताए थे उस स्टेप्स को मैं अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू हम उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। नाउ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड नेट एग्रीकल्चरल इनकम विद द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों को हम पहले प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 50,000 प्लस 4,95,000, तो इज इक्वल टू 4,45,000। हमने नेट एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ दिया, जो कि हमारी फिगर आई है 5,45,000। सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ टैक्स एट करंट रेट्स ऑन 5,45,000। मैंने आपको भी जो टैक्स स्लैब रेट जो हैं वो मैंने आपको अभी शो किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस इनकम के ऊपर, इस कैलकुलेशन के ऊपर हम टैक्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट 2,50,000, क्योंकि ये जो है वो बंदा 60 ईयर से नीचे है, तो 2.5 लाख के एग्जम्पशन वाला स्लैब जो है हम उसको फॉलो करते हुए इसकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं। तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर नील, देन जो कि नेक्स्ट 2,50,000 है उसके ऊपर 5% टैक्स बनेगा, जो कि 12500 बनता है। उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा 45,000, तो इसके ऊपर 20% स्लैब के अकॉर्डिंग अबव 5 लाख वी हैव टू पे 20% टैक्स। तो 20% ऑफ 45,000 दैट इज़ 9,000 मिस्टर अरुण की यहाँ पे टैक्स रेट बनते हैं। अब इसका टोटल अगर हम करेंगे तो 21500। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा पूरा हो चुका है। नाउ थर्ड स्टेप में हमने ऐड करना है नेट एग्रीकल्चरल इनकम को विद एग्जम्प्टेड लिमिट। अब देखिए, ये बंदा 60 ईयर से नीचे है, तो इसके लिए एग्जम्प्टेड लिमिट क्या होगी, 2,50,000। मीन्स वी हैव टू ऐड नेट एग्रीकल्चर इनकम विद एग्जम्प्टेड लिमिट। जो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो है 50,000 और एग्जम्प्टेड लिमिट हमारी है 2,50,000, और इसका अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 3 लाख रुपीज़। अब फोर्थ स्टेप क्या था कि वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ टैक्स ऑन ₹3 लाख। तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर टैक्स जो है वो नील है। उसके बाद जो बैलेंस है मीन्स 2.5 लाख से ऊपर 50,000 रुपया, 50,000 के ऊपर वी हैव टू पे 5% टैक्स दैट इज़ 2,500। अब इसका हम टोटल कर लेंगे तो 0 + 2,500 इज इक्वल टू 2,500। नाउ फिफ्थ स्टेप इज डिडक्ट टैक्स एट स्टेप 4 आउट ऑफ टैक्स स्टेप 2। जो हमने 4 पॉइंट पे टैक्स कैलकुलेट किया है इसको हम डिडक्ट कर देंगे जो हमने सेकेंड पॉइंट में टैक्स को कैलकुलेट किया है। तो 21,500 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 19,000। अब देखो, इसको रिबेट मिलेगी। अब ये क्वेश्चन है कि रिबेट मिलनी है कि नहीं मिलनी है। रिबेट कब मिलनी है, आपको मैंने अभी बताया था कि रिबेट तब मिलेगी जब हमारी जो टोटल इनकम है पिछले साल, वो हमारी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी 5 लाख रुपए से एक्सीड ना हो। तो यहाँ पे मिस्टर अरुण की जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो है 4,95,000। सो मिस्टर अरुण विल गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब रिबेट मिलेगी कितनी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो मैंने क्या बोला था कि जो टैक्स है या फिर जो रिबेट का अमाउंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा, मीन्स 12,500, या फिर टैक्स यहाँ पे बनता है 19,000। तो 19,000 और 12,500 विच एवर इज़ लेस, सो 12,500 इज़ लेस। सो रिबेट जो मिलेगी उसको इंडिविजुअल रेजिडेंट को वो 12,500 मिलेगी।
तो अगर हम 19,000 में से 12500 माइनस करते हैं तो 6500 हमारी फिगर आती हैं। अब इसके बाद वी हैव टू ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो हमारा है 4%। तो हम 4% को ऐड करेंगे जो कि 6500 का 4% 260 बनता है। तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी जो है, टैक्स पेबल जो बनता है वो 6760 बनता है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इंटीग्रेशन स्कीम समझ आ गई होगी। देखिए जो रिबेट है वो इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए अवेलेबल है। अगर एच का क्वेश्चन आता है तो एच के लिए या अदर पर्सन के लिए रिबेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है देन ओनली रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल बी अवेलेबल और एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी बाय गिविंग कमेंट। And thank you all for watching and listening this video. Please subscribe YouTube channel, like and share the video if you really like. Thank you guys.